24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 4 of English Grade 5. The unit title is The Hand I Hold. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to use pre-reading strategies to predict a poem by looking at pictures, title, etc. by using prior knowledge. Produce in speech and practice appropriate patterns of rhythm, stress, and intonation by listening to the poems read aloud in the class. Demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to express needs, feelings, and ideas. Use critical thinking to respond to the text post-reading and relate it to their own feeling and experiences. Pronounce and practice more words with silent letters. Use appropriate expression in conversation to express and respond to opinion. Read silently for comprehension. Recognize alphabetical arrangement of words in a dictionary. Recognize verbs as regular and irregular and use forms of more regular and irregular verbs. And demonstrate the use of has, have, and had. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the poem. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Write the following question on the board and tell the students to answer it when you finish writing. Honorable teacher, इस तरह के सवाल हम पहले भी इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं. मैं फिर भी दोहरा दूं कि सवाल एक ही है, नीचे फिर उसके सब क्वेश्चंस हैं. बोर्ड पर आप लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे कि जब तक मैं इस सवाल पूरा यानी सब क्वेश्चंस समेत लिख न लूं बोर्ड पर, तब तक जवाब कोई नहीं देगा. और वैसे भी जवाब किसी को देना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस शुड बी द नॉर्म ऑफ द क्लासरूम के बगैर पॉइंट आउट किए टीचर के किसी को जवाब नहीं देना चाहिए. सिर्फ वही जवाब दे जो इसको आप पॉइंट आउट करें. Now the question is, who is that person in your life? Who? आपकी जिंदगी में कौन सा वो शख्स है जो, अब आगे इसके सब क्वेश्चंस, जो loves you the most, is your first teacher ever. जिंदगी का सबसे पहला टीचर. Brought you in this world, आपको इस दुनिया में लाया वो शख्स, and takes the best care of you. I'm sure क्लास 5 के बच्चे हैं, फौरन जान जाएंगे कि इन सवालात के जवाब के तौर पर आपने किस शख्स का पूछा है. Tell the students that they guessed right. इसीलिए मैंने ये लिखा है कि tell the students that they guessed right. And that is the theme of the poem they are going to read. और वो आंसर क्या है? माँ, mother. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. The hand I hold. The hand that cradled me when I was small. The hand that reaches out each time I fall. The hand on my forehead when fevering. The hand on my shoulder encouraging. The hand that cheered in my victories.
the hand that caught me in all defeats, the hand on my cheek that wiped a tear, the hand in my heart that calmed my fears. This is the hand that guided me throughout my lifelong journey. This is the hand I'll not let go. I'll hold your hand, Mom, till old you grow. Ask the children to take turns reading sections of the text. Correct their pronunciations, intonation, and rhythm at appropriate timings. अब यहाँ थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा ऑनरेबल टीचर, ये कोई पहली दफा बात नहीं हो रही, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू रिपीट इट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पोएम रीडिंग में होती है, दैट इज टू मेंटेन द रिदम. रिदम वजन, सुर या सुरताल जिसे हम कहते हैं. मैं हर मर्तबा यही एक सेंटेंस दोहराता हूं. आप उर्दू हो या अंग्रेजी, वर्सेस पढ़ते हुए, अशार पढ़ते हुए लगे कि अशार पढ़े जा रहे हैं, और वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप रिदम मेंटेन नहीं करेंगे. और इंटोनेशन वैसे तो है ही इंपॉर्टेंट प्रोस में, नसर में, मगर पोइट्री में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और प्रोनाउंसिएशन अगर गलत बोला जाएगा तो वो रिदम को कायम करने में रुकावट बन सकता है. सो बच्चे जब पढ़ें, आई एम श्योर आप जब पढ़ेंगे जाहिर है तो रिदम तो आप मेंटेन करेंगे एज अ टीचर, बट बच्चे जब पढ़ें तो उनको प्लीज आपने ताकीद करनी है और प्रैक्टिस भी करवानी है कि वो रिदम के साथ पोएम को पढ़ें. Bring the rhyming words to the students' attention as they are in their weak form. अच्छा, rhyming words जो होते हैं ना, वो जिसको हम उर्दू में काफिया कहते हैं, वो strong rhyming words भी होते हैं, वो weak rhyming words भी होते हैं. अब जैसे आप अगर तीसरा वर्स पढ़ें, यानी 5वीं और 6ठी लाइन, तो अब देखें बुक आपके सामने पड़ी है, जरा निकालिएगा पोएम. The hand that cheered in my victories, the hand that caught me in all defeat. अब इसमें सिवाय में जो ई साउंड है, victories, defeats, ये तो है. अदरवाइज देखें, आप बिल्कुल टॉप पे जाएं और पहली 2 लाइनें पढ़ें. The hand that cradled me when I was small, the hand that reaches out each time I fall. अब ये जो स्मॉल और फॉल है, ये स्ट्रॉन्ग राइमिंग वर्ड्स है, लेकिन विक्ट्रीज और डिफीट्स ये वीक राइमिंग वर्ड्स है. तो ये आप बच्चों को भी बताएंगे, तो को बताना ये है कि वीक राइमिंग वर्ड्स को भी पढ़ते हुए कोशिश ये करें कि वो राइमिंग वर्ड्स लगे. Ask the students what the last 2 lines of the poem mean. अच्छा, ये बाकी काम तो हम ऑनरेबल टीचर करते रहते हैं, लेकिन जाहिर बात है जो एक बड़ा काम है वो ये है कि वो जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या जो पोएम पढ़ रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंड भी तो करना है ना उन्होंने, और ये आप ही ने उसकी तशरीह करनी है. इसीलिए डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हम बताते हैं. तो यहाँ इस पोएम में ये जो आखिरी 2 लाइनें हैं पोएम, ये न सिर्फ ये कि बड़ी मीनिंगफुल है, बल्कि बड़ी जबरदस्त है. मतलब बड़ी बड़ी मूविंग है और एक नया आइडिया देती है. आस्क द स्टूडेंट्स व्हाट द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन. अब ये लाइन्स क्या हैं? आपके पास है बुक, जरा देखिएगा. This is the hand I will not let go. I'll hold your hand, Mom, till old you grow. अब इसका मतलब क्या है? इसमें 2 बातें हैं, आप बच्चों को बताइएगा. जो आखिरी लाइन है ना कि I'll hold your hand, Mom, till old you grow. मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ. Ask the students what the last 2 lines of the poem mean. If you see them struggling, tell them that a child holds her mother's hand because the child needs it.
And when the child grows into a man or woman, she or he holds the mother's hand because the mother needs it now. कितनी जबरदस्त बात है. Keep holding your mom's hand. जब आप छोटे बच्चे हैं, आप बच्चों को बताइएगा और उन्हें ये एहसास भी दिलाना है आपने, क्योंकि across the texts, across the book, never forget that जहां मौका मिले आपने उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है. देखिए ना, बच्चा जब छोटा है तो वो मॉम का हाथ इसलिए पकड़ता है कि बच्चे को जरूरत है, और बच्चा जब एडल्ट बन जाता है, ग्रोन अप मैन और वुमन बन जाता है, तो फिर उसको मॉम का हैंड होल्ड करने की इसलिए जरूरत है कि अब मॉम नीड्स इट. अब मॉम को जरूरत है क्योंकि मॉम अब बूढ़ी हो गई. So this is the message in the poem. It's a beautiful poem. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's page 35. SLO is number 3. Sister: Hey brother, how are you? Brother: I'm good. How about you? Sister: I'm perfectly fine. How's your preparation for exams going on? Brother: Good, but I'm really scared of my exams. Sister: Why so? Brother: Because I think I'm still lacking somewhere. Sister: Don't worry, dear. You still have a month. Push yourself a bit more. You will do a better job. Brother: Thank you, sister, for your support. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Cradle: to hold somebody, something gently in your arms. बच्चों को बताइएगा, याद तो शायद उनको ना हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटी उम्र, शायद पहले या उसके थोड़ा सा बाद तक ये होता है. अब देखिए, क्रैडल के दो मानी हैं. एज अ नाउन, ये वो जो पंघूड़ा होता है जिसमें हम लिटा देते हैं बच्चों को ताकि सो जाएं, और इसमें शायद झूले भी दे दिए जाते हैं. लेकिन ये वर्ब भी है, टू क्रैडल. तो बच्चों को अगर अपना एक्सपीरियंस याद नहीं भी है, तब भी बच्चों ने अपने छोटे बहन भाइयों को तो इस कैफियत में देखा होगा कि माँ या कोई भी और बच्चे को अपने बाजुओं में लेके तो झूले देता है या बाजू में वैसे ही पकड़ लेता है. इसको कहते हैं cradle. Cheer: to show support or praise for somebody by shouting loudly or to encourage them. Cheer मतलब आप अगर कोई थिएटर देख रहे हैं या आप कोई मैच देख रहे हैं तो आप कोई लाउडली कोई नारा लगाते हैं, तारीफ के अल्फाज निकालते हैं, तो आप बेसिकली सपोर्ट शो कर रहे होते हैं. और ऑनरेबल टीचर, आपने यकीनन बच्चों ने भी बाज़ औक़ात कुछ मैच होते हैं जिनमें आप देखते हैं कि चीयर गर्ल्स होती हैं या चीयर बॉयज भी हो सकते हैं, तो उनका मकसद भी यही होता है. वाइप: to rub a surface with a cloth etc. in order to clean it. वाइप करना, वाइपिंग इससे बनता है. बल्कि आप बच्चों को बताइएगा कि ये जो गाड़ियों की विंड स्क्रीन होती है उस पे जो दो लगे होते हैं वो वाइपर्स होते हैं जो पानी साफ करते हैं बारिश हो रही हो. काम: अब ये काम जो है आमतौर पर इस्तेमाल हो जाता है कूल एंड काम, काम एंड कूल, बल्कि काम एंड कूल ज्यादा. ये एडजेक्टिव भी है, यानी जो पुरस्कून हो बंदा उसको हम कहते हैं he is very calm. कोई जगह हो ऐसी तो हम कहते हैं it's a cool and calm place. बट यहां इस पोएम में it is used as a verb to calm somebody, to make somebody become quiet and more relaxed. आपके एक्सपीरियंस में होगा ऑनरेबल टीचर
टीचर एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चों के साथ कि कोई बंदा या कोई बच्चा परेशान हो और वो रोने लगे तो हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं कम ऑन, काम डाउन, रिलैक्स। इसका मतलब है रिलैक्स। देखिए इस तरह ये जो मुख्तलिफ शेड्स है ना वर्ड्स के ऑनरेबल टीचर, ये आप बताएंगे तो बच्चों की वोकेबलरी बेहतर होगी। वोकेबलरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द किटी, नहीं, वोकेबलरी का ये भी मतलब कि एक ही वर्ड के मुख्तलिफ यूजेस क्या हैं, वो एडजेक्टिव क्या है, वो एज वर्ब क्या है, और अगर वो नाउन भी है तो फिर वो एज नाउन क्या है। लाइफ लॉन्ग, उम्र भर का, इट्स अ कंपाउंड वर्ड। और कंपाउंड वर्ड्स हमने पढ़े हैं, उनका जिक्र होता रहा है पहले भी। कुछ हाइफन के साथ होते हैं, कुछ हाइफन के बगैर होते हैं। अब देखिए ना, लाइफ लॉन्ग है, मुझे अगर शक पड़ जाए कि नहीं यार इसमें तो हाइफन होना चाहिए था लाइफ और लॉन्ग के दरमियान, कहां से मैं चेक करूंगा? वर्ड तो है, कंपाउंड वर्ड है। इसीलिए मैं कहता हूं ऑनरेबल टीचर, आप भी और आप फिर बच्चों को भी बताइएगा कि कंपाउंड वर्ड में हाइफन आना है या नहीं, ये आपको डिक्शनरी ही बताएगी। लेट्स कम टू ग्रामर नाउ। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, it's at page 37 and 38. SLO is number 9. पहले भी मेरा ख्याल है कि हम पढ़ चुके हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। क्लास मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि बुक में मौजूद है और रीड मी दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हमने समझने की कोशिश करनी है कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। Let's read the definition. Regular verbs are the verbs that change their form in the same way as most other verbs. The past participle of regular verbs ends in D or ED. अच्छा, जितने भी verbs हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आप बच्चों को जरूर बताइएगा, अगर उनको पता भी है तो फिर भी रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। रेगुलर वर्ब्स वो तमाम वर्ब्स हैं जिनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी दूसरी और तीसरी दोनों फॉर्म वर्ब्स, वो या डी लगाने से बने या ईडी लगाने से बने। मिसाल के तौर पर वर्ड है दाए, मर जाना। अब ये चूंकि ई इसमें ऑलरेडी है आखिर में, तो डाइड बनेगा सिर्फ डी लगाने से। और दूसरी सूरत जो है वो ये है कि फर्ज करें वर्ड है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये बनेंगे ईडी लगा के। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, ईडी लगेगा। अच्छा, ये जो डी और ईडी लगा के जितने वर्ब्स की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है, इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स क्या है? इरेगुलर वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज देयर फॉर्म इन द नॉर्मल वे, दैट इज बाय एडिंग डी और ईडी टू देम। वो उनका अपना तरीका है। फॉर एग्जाम्पल राइट, रोट, रिटन। सो राइट जो है ये irregular verb हो गया। Tell the students that a dictionary separately gives a list of irregular verbs with past and past participle of each of them. डिक्शनरी के आखिर में, यानी जहां वर्ड्स के मानी खत्म हो जाते हैं और कुछ अपेंडिक्स दिए होते हैं, उसमें एक अपेंडिक्स होता है irregular verbs का, और वो तमाम irregular verbs जो हैं उनकी वो फिर स्पेशली पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो। लेकिन हर वर्ड के आगे भी होता है, हर वो वर्ड जो इरेगुलर वर्ब है उसके सामने उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो वहीं भी दी हुई होती है, और अलग से लिस्ट भी एक मुकम्मल दी हुई है।
Let's come to creative writing now. Explaining the quotation, a mother understands what a child does not say. Pages 40 as well as 4. मतलब आप बताएं बच्चों को कि माँ अपने बच्चे की वो बातें भी समझती है जो वो कहता नहीं है. ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये तो आम आदमी भी कर लेते हैं कामयाबी से, माँ और बच्चा क्यों नहीं करेंगे? इसको एक्सप्लेन करें आप. Pages 40 as well as 4. Discuss the quotation with the students. Bring out the main points. Check the students' work in due course. अच्छा, इसमें जब आप डिस्कस करें ना ऑनरेबल टीचर बच्चों के साथ ये कोटेशन, तो उन्हें फिर थोड़ा सा, वो जिसको हम कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं, वो ये जरूर बात बताइएगा कि वो माँ जो अपने बच्चे की जरूरतों को बगैर उसके बोले भी समझ जाती, वही बच्चे, बास बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो वो उसी माँ को ये पूछते भी नहीं है कि उसको जरूरत किस चीज की. देखे ना, जब बच्चा छोटा है तो माँ बगैर पूछे समझ जाती है, बगैर बच्चे के बताए समझ जाती है कि उसकी जरूरत क्या है. लेकिन जब माँ बूढ़ी हो जाती है, बच्चे अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो उस माँ से पूछना भी गवारा नहीं करते कि उसकी जरूरतें क्या है. Well, at this sad note, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you.